We are using yellow color for the background of crown. This is flash tint. I'm just going to give a coat on the face. Whatever you have to erase, please erase before giving the coat. Like afterwards, it will be very difficult to cover our mistake. This is black paint. In Madhubani, we have two styles of making hairdo. One is Kachni style, other one is Bharni. So I'm going to show you first Kachni style. Bharni means we will fill the black color fully. In Kachni style, we'll just show the thin lines here. And in this part also, lines will go like this. And little portion will fill with the black color paint. In Bharni style, everything we can fill with black, but second part, we have to draw the double line. And in between, we have to show the white paper. So these are two styles. Whichever you like, you can do. I am going to fill fully here. I have done a mistake, please correct it. Here, one more curve should have come. I'll correct it later. I'll wait for this part to dry, then only I can do. So this is something. Now, let's start from the top part. So if you people don't mind, I'll turn it because this part is getting dry. And we'll do this corner. So in the corner, first, I will fill the yellow color, then outline with black color. And in between, red color. Okay, same pattern we are following.
If you want to give yellow color background, then you don't fill here yellow. Here you use some other color. Let it dry. In the meantime, we'll do these two. We will make sure we are erasing all the pencil marks. We will wait for this part to get dry, and in the meantime, if this is spend more time afterwards, step by step. Since we are planning to give any background, so right now no point in giving black background. I'll start working with maroon color. This is dark red, Indian red. You can draw and paint everything with black color also. Black paint also. Actually, in traditional Madhubani, it has to be black. If you cannot draw freehand, then please draw in pencil first. आपसे अगर फ्री हैंड नहीं होता है तो आप पहले पेंसिल में बना लीजिए और फिर उसको कलर करिए. आप चाहें तो फूलों में भरनी कर सकते हैं. If you want, you can fill the color in the flowers. In between, we have to keep on cleaning our brush. Otherwise, paint gets accumulated in the brush. In Madhubani, alternate petals में भी filling करते हैं. Like bharni in one petal, another petal will be left blank. Or like here we have done, one petal it has bharni, other petal is blank. Other petal can have line work also. कचनी भी कर सकते हैं दूसरी petal में हम. जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको. एक में भरनी, एक में कचनी. I am filling color, मतलब मैं भरनी कर रही हूँ. We'll come to next line.
इसके बाद ये तुरंज का डिजाइन है, मैंगो डिजाइन। ये डबल लाइन के बीच में हमें कुछ भी डिजाइन हम चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दें, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन डबल लाइन देनी जरूरी है। तो ये हमारी 1 2 3 चौथी लेयर हो गई। आप चाहें तो फूलों में भरनी दे सकते हैं, भरनी मतलब फिलिंग ऑफ कलर। चाहें तो इसमें लाइन वर्क कर सकते हैं जो कि कचनी कहलाता है, और चाहें तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, तीनों चीजें अलाउड हैं। मधुबनी में हम नियमों के अनुसार बहुत चलते हैं। अब नेक्स्ट लेयर आएगी हमारी, तो हम उसमें बॉर्डर में कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो भी इधर देंगे वही यहाँ देना है। ये हमारा एक कॉर्नर हो गया। ये ऑरेंज कलर है और मैं ऑरेंज कलर की बैकग्राउंड दे रही हूँ पेंटिंग में, क्योंकि ये एक्रेलिक पेंट है। अगर अच्छा नहीं लगा तो अपन बदल लेंगे। बैकग्राउंड के कम से कम 2 कोट देने होंगे, क्योंकि पहला कोट पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत संभल के करिएगा, यहाँ पे जरा सा भी हाथ आपका हिला और सब गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं 0 नंबर का ब्रश ले रही हूँ और इससे ये जो एजेस है ना, इनके बीच का गैप भरूंगी। वैसे हमें एक बार और यहाँ पे मैरून कलर का, डार्क रेड कलर का कोट देना पड़ेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही धीमे धीमे करना पड़ेगा। कहीं 000 नंबर ब्रश से, कहीं 4 नंबर से, कहीं 8 नंबर से, डिपेंडिंग ऑन और फिर ये देखिए, जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे,
ये डबल सेकंड कोट, थर्ड कोट वो सब भी करने होंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बैकग्राउंड आएगी। आप जिस कलर की भी देना चाहें दीजिए। मैं अब कान का शुरू कर रही हूँ। तो फिर से ये 00 नंबर ब्रश है। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले कान में इस साइड का मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो पहले इस जगह मैं पूरा ऑरेंज कर देती हूँ ताकि फिर मुझे रेड वाला काम दोबारा ना करना पड़े। मैं इसके किनारे किनारे लाइन से बनाती जा रही हूँ। आप लोग मेरी पुरानी देवी माँ की पिक्चर देखिएगा, मैंने उसमें मेरे फेसबुक पेज पर है वंदनास आर्ट पे, और उसमें मैंने बेस येलो का देके बैकग्राउंड देके और फिर उसके बाद स्पंज में ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा लेके उससे डैबिंग कर दी थी ऐसे। तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट आया था। तो वो भी एक चॉइस है आपके पास। वो पेंटिंग जरूर उस पे वंदनास आर्ट पे या इंस्टाग्राम पेज पे अपलोडेड है। तो हम ये शुरू कर रहे हैं अब। इसके बीच में ना हम एक मोटी लाइन दे रहे हैं। इधर के डिजाइन में भी यही लाइनें आएंगी, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मेरा हाथ टच कर रहा है। तीन लाइनें बनाई हैं मैंने। आई हैव ड्रॉन 3 लाइन्स। अगर ये पट्टा चित्रा होता तो हम यहाँ पर एक पत्ती बनाते, लेकिन ये मधुबनी है तो हम इतना ही छोड़ देंगे। ये हमारा एक कान हो गया, कर्णफूल। 1 ear is done. Now we'll start with the earring. ये हाफ आएगा because behind it is behind the earring. आईज एंड नोज ना मैं पहले पेंसिल से इससे पेन से बना रही हूँ। दिस इज द थर्ड आई ऑफ देवी जी। दिस इज रेड पेंट। आई थिंक मुझे वेट करना पड़ेगा इसके सूखने का, तब मेरा कोटिंग इस पे हो पाएगी सही। अभी क्योंकि वो गीला है इसलिए अच्छा नहीं आ रहा है कलर। इसका मतलब ये पेन की इंक अच्छी नहीं है। मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज करा था। अभी जब ये सूख जाएगा तब इसमें मैं वाइट कलर के डॉट्स दूंगी।